Hello everyone, I am Bhavleen and you are watching my channel BK Tech. In the previous video, we have done question number 7 of exercise 1.3. In this video, we will do question number 8, exercise 1.3. So let's get started. Question number 8 says, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. So there is a cement company. Okay, there is one cement company which earns profit when it sells rupees 8 bag of white cement. So whenever it sells white cement bag, it is of rupees 8. So it earns profit by selling it. And it earns loss by selling grey cement bag of rupees 5. Now the A part says the company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? Now they have told that in a month, in 1 month, what is 1 month? Sorry, 1 month is equals to 30 days. Okay, 30 or 31 days. Alright, वैसे हम 30 लेंगे days. Alright, now that means in 30 days the company sells how many bags of white cement? 3000 bags of white cement. Alright, of white cement the company sells 3000 bags in 1 month, that is 30 days. And in 1 month it sells 5000 bags of grey cement. Now they are asking that at the end of the month, what will they make? Will they make profit or will they make loss? For finding that, we will multiply 3000 by 8, as 1 bag of white cement is rupees 8, with which selling it the company earns profit, and 5000 bags, 5000 with 5 rupees, because by selling it the company earns loss. So let's do it. Now this is here we have multiplied them. 3000 by 8, because by selling white cement bags it earns 8 rupees profit, and 5000 by 5, because by selling grey cement bags it earns loss. Now which one is bigger? Loss one's bigger is, or profit one is bigger? Loss one is bigger. That means the company earns loss in this month. Okay? Now how much loss it earns? So we will subtract 24,000 out of 25,000, we'll get 1,000. So you will get rupees 1,000 loss. So this was part number 1. Now let's come on to the second part. Now the second part says, what is the number of white cement bags sold if the grey cement bag sold is 6400 bags? You should not have neither profit nor loss. Now ना ही प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को और ना ही लॉस होना चाहिए.
तो उन्होंने हमें बता रखा है कि जो ग्रे सीमेंट वाले बैग्स हैं वो 6400 बैग्स सेल हुए हैं। तो वाइट सीमेंट बैग्स कितने सेल होंगे? सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड, एंड इतना ध्यान रखते हुए कि ना ही उनका लॉस होना चाहिए और ना ही उनका प्रॉफिट होना चाहिए। So let's get started solving this part. Now we have to find white cement bags. So we'll take the number of white cement. Never mind my handwriting, guys. Bags sold BX. तो जो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड हैं वो हम X ले लेते हैं, ठीक है, एज हमें उस चीज को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स जो है वो X ले लिया। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड। सो ये तो हमें गिवन है, कितना गिवन है? 6400 ये तो हमें गिवन है। ऑल राइट, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 6400 बाय व्हाट? नाउ ग्रे सीमेंट बैग्स सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देने से पहले हमें ये बताया हुआ था कि अगर वो एक ग्रे सीमेंट बैग सेल करते हैं तो ₹5 का वो लॉस इनकर करते हैं, ओके। और अगर वो वाइट सीमेंट बैग सेल करते हैं तो उनको ₹8 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? X को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 6400 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि लॉस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर हम X को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, X इंटू 8 तो कितना हो जाएगा? 8X। और अगर हम 64 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32,000। ऑलराइट, 32,000 आ जाएगा। अब हमें ये चीज फॉलो करनी है, लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लॉस को लॉस की जगह पे लिख देंगे और प्रॉफिट को प्रॉफिट की जगह पर लिख देंगे। What we will do? We will write 32,000 in place of loss and 8x in place of profit. So 32,000 equals to profit is 8x, okay. So 8x will be there like this. Now here 8 is multiplying. अब आप लोगों ने इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस किए होंगे, अगर नहीं किए तो ये सीख लीजिए कि जब भी कोई भी नंबर, ठीक है, ऐसे में होता है, जैसे इक्वल टू का साइन होता है, इधर कोई और नंबर होता है, इधर कोई और नंबर होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब x के साथ, x क्या होता है? हमारा एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स वो किसी में भी, मतलब कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। मतलब कि 8 जो है वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा
कि जो 8 है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पे, तो वो 8x हो गया था। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल टू साइन लगा है ना, अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम 8 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू x। ओके, ऐसे हो जाएगा। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर की साइड चेंज करते हैं ना, ठीक है, तब अगर उधर जाके इधर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज 8 डिवाइड हो रहा होता तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता, और अगर इधर सपोज प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि 32 8 के टेबल में जाता है, 32 4 जा, ठीक है, एंड पीछे 1 2 3 जीरोस लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 4000। सो 4000 क्या हो जाएगा हमारा x। दैट मीन्स जो हमारा वाइट सीमेंट बैग सोल्ड है ना, वो कितने हैं, x। अब यहाँ पे हमारा क्या प्रूव हो गया कि L इज इक्वल्स टू P। दैट मीन्स लॉस इक्वल्स टू P। So this was the last part of question number 8. Now let's come on to this last question of this exercise, question number 9.